Everyone, this is my first video of this chapter number 2, the treeless grassland from your Dewdrop Term Book 2. In this, we will study about prairies which are present in North America. Now, as the name suggests, what do you mean by temperate zone? Here, the temperate means moderate. Okay. Now, first of all, I want to show you on a map that there are some of the 3 green patches which are present in the southern hemisphere and 2 big patches which are present in the northern hemisphere. So what do you mean by these? See, these patches are the grasslands which are present in different continents. Now what are these grasslands? These grasslands are present in the temperate zone. Now what do you mean by temperate zone? This temperate zone is present between the tropics, the Arctic Circle and the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. ओके, इनकी विशेषता ये है कि ये केवल इन दोनों के बीच में ही आपको मिलेंगे और बीच में जो इक्वेटर के जो अगल बगल है तो वो हम लोगों ने इससे पिछले चैप्टर में वी हैव रेड दिस इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ द जायरे इन विच देयर वर इक्वेटोरियल रीजन और फॉरेस्ट रीजन. Okay, but here there are no forest, there are just grassland. Now the temperate zone is located between the tropics and the polar circle. As I have told you, Tropic of Cancer to Arctic Circle and Tropic of Capricorn to Antarctic Circle. And as the name suggests, the places in this zone are neither too hot and nor too cold. Now some of its features are they have very less rainfall, which usually falls in summer. As in winter there is snowfall and in summer there is rainfall, but it is very less and only grasses grow, so they are known as grasslands. It covers more than 1/5 of the size of the earth and there are very enormous and very big flat plains of grass with very few trees and bushes. Okay, the rains are very less, so the forest cannot grow, only grasses grow here. Now what are these grasslands called in various parts of the world? Now this is very important. These are prairies in North America, steppes in Europe and Asia or Eurasia, pampas in South America, velds in South Africa and downs in Australia. Okay, these are the names which you have to learn and these are very important and can be asked in the exam also. Now what do you mean by prairies? This we will study further, but here there are some of the features of the climate of some of the grasslands of the world. Now climate, most of the grasslands of the world have cool temperature or continental temperature. Continental means there is moderate temperatures. The summers are warm and the winters are very cold, especially in the steppes and the prairies. Okay, the summers are very cold. The pampas and the downs are near the seas. Pampas is present in the Argentina or the South America portion and downs is present in Australia, so there are proximities near to the sea, so they have moderate temperature. But velds, which is present in Africa, is having mild winter and hot summer due to its nearness to equator as compared to other. Now one major line which you have to underline is these grasslands are the granaries of the world. Why this is called a granary? Granary क्यों कहलाता है? Granary का मतलब होता है भंडार. ये पूरे देश, पूरे वर्ल्ड का एक तरह से भंडार होता है एग्रीकल्चर का, क्योंकि यहाँ पर गुड क्वालिटी क्रॉप्स होते हैं और बिल्कुल अबंडेंस में होते हैं, ज़्यादा तादाद में, बहुत मात्रा में. यहाँ पर वीट, राइस मतलब गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, हर चीज़ यहाँ पर होती है और इसलिए यहाँ पर इसको ग्रेनरीज कहा जाता है. एक तरह से गोदाम कह सकते हो आप खाने पीने का, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की सप्लाई होती है खाने पीने की. ठीक है. नाउ एक एक करके सबके बारे में बताया गया है, 5 के बारे में, तो उसके बारे में स्टडी थोड़ा बहुत कर लेते हैं. पेम्पस, द पेम्पस आर यूज फॉर वीट कल्टिवेशन. ये पेम्पस कहाँ पर है? यू कैन सी इन द मैप. See, this is pampas. Pampas is present in the Argentina and Brazil border. Okay,
सो द पेम्पस आर यूज फॉर वीट कल्टीवेशन। यहाँ पर वीट का कल्टीवेशन होता है। वीट मीन्स गेहूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। कैटल फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। कैटल फार्मिंग मीन्स यहाँ पर भेड़ बकरी वगैरह का चलन यहाँ पर बहुत है, तो उनको कैटल बोलते हैं। यहाँ कैटल फार्मिंग मतलब पहले उनको चराया जाता है, फिर उनका मीट भी एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर काव भी बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए यहाँ पर बीफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बीफ इज़ अ मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना एक तरह से नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में। बीफ मतलब काउ मीट, तो काउ मीट में मेजर एक्सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा बेचता है ये। अल्फाल्फा ग्रास इज़ ग्रोन टू फीड द कैटल। यहाँ पर घास जो अपने अमूमन हमारे यहाँ जो मिलती है वो लगभग अपने हाथ के बराबर या मुट्ठी के बराबर होती होगी, लेकिन वहाँ पर ये लगभग 6 से 8 फीट के लगभग पहुँच जाती है। गन्ने के बराबर लंबी लंबी घासें वहाँ मिलेंगी आपको, तो उसको अल्फाल्फा ग्रास बोलते हैं। ठीक है। डाउन्स आर यूज फॉर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। ये डाउन्स कहाँ मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया में। ये रहा डाउन्स, ये डाउन्स है। तो डाउन्स आर यूज फॉर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। दे टू हैव मिल्च कैटल। ये मिल्च क्या है? मतलब मिल्च का मतलब होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मिल्क। ठीक है, तो ये मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल होते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे शीप, गोट इस तरह के यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। तो दे टू हैव मिल्च कैटल इन द कूलर प्लेसेस वेयर बटर, चीज़ एंड मिल्क पाउडर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो दूध से बनी हुई चीज़ें, बटर, चीज़, मिल्क पाउडर, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। नाउ प्रेरीज ग्रो वीट, मेज एंड कॉर्न। भुट्टा वगैरह, कॉर्न वगैरह और वीट, यहाँ पर गेहूँ वगैरह सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। प्रेरीज कहाँ पर है? जो इसका ये चैप्टर है, ये प्रेरीज आपको मिलेगा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो प्रेरीज ग्रो वीट, मेज एंड कॉर्न। एग्रीकल्चर इज मैकेनाइज्ड एज द एरियाज अंडर द फार्मिंग्स आर ह्यूज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या है यहाँ पर? मैकेनाइज्ड है। मैकेनाइज का मतलब सब चीज़ें जो भी यहाँ पर हमारे इंडिया में किसान वगैरह अपने हाथों से करते हैं या कुछ छोटी छोटी मशीन से करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन से, तो ज़्यादातर काम वहाँ पर मैकेनाइज्ड है। एक ही दो लोग पूरे खेत को, बड़े से खेत को, एक या दो, मुश्किल से 3 से 4 लोग बहुत बड़ा खेत संभाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम मशीन से ही होता है। तो मशीन ही लगभग पूरा काम करती है और गिनती के कुछ किसान काफ़ी बड़ा खेत को संभाल ले जाते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा उल्टा होता है इंडिया में। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड है और फार्मिंग्स भी वहाँ पर बहुत बड़ी हैं। ठीक है, अपने से कम अपने यहाँ के खेतों से लगभग 20 से 30 गुना, 20 to 30 टाइम्स यहाँ पर वहाँ के फार्म्स आपको मिलेंगे। स्टेपीज़ वर होम टू नोमैडिक ट्राइब्स। अब स्टेपीज़ की बात हो रही है। स्टेपीज़ कहाँ मिलेगा आपको? ये स्टेपीज़ है, ये यूरेशिया कहलाता है। यूरोप और एशिया दोनों मिलाकर यहाँ तक ये आपका यूरोप है और यहाँ से ये एशिया है, तो ये यूरेशिया है। ये पूरा एरिया दोनों का कवर कर रहा है। ये ज़्यादातर साउदर्न पार्ट्स ऑफ रशिया कह सकते हैं, ये पूरा रशिया है, तो ये सदर्न पार्ट ऑफ रशिया है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, टर्की, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर यूरल्स वगैरह है। तो स्टेपीज़ वर होम टू नोमैडिक ट्राइब्स लाइक द किर्गिज एंड द कजाक्स। नोमैडिक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने वाले लोग। तो स्टेपीज़ वर होम टू नोमैडिक ट्राइब्स लाइक द किर्गिज एंड द कजाक्स। ये किर्गिज और कजाक्स नोमैडिक ट्राइब हैं, जिनके नाम पे कंट्री भी है, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, एज यू कैन सर्च। तो ये लोग बहुत सालों पहले यहाँ पे रहते थे, अब यहाँ पर वो नहीं है, तो यहाँ पर वीट उगाया जाता है यूक्रेन की जगह पर और कुछ रशिया की। ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट वन इज वेल्ड्स, जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो वेल्ड्स ग्रो मेज़, यहाँ पर केवल मेज़ उगाया जाता है। काफ़ी छोटा एरिया है साउथ अफ्रीका का। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।